Good morning everyone. In today's class we are going to start energies of an ideal fluid and Bernoulli's theorem or Bernoulli's principle. In the previous classes, yesterday classes, we have discussed about the Reynolds number, ideal fluids and equation of continuity and their physical importance. So let's start with our first topic, energy of a fluid in a steady flow. So what we are considering here, कि if an ideal fluid flowing through a tube, then which types of energy is associated with the flow of the ideal flow when they are in steady flow. Means इसमें ये होगा कि a liquid in steady flow, इसमें हमारा लिखेंगे a liquid, लिखते चलते हैं समझते चलते हैं, a liquid in steady flow have three types of energy. अगर liquid steady flow में है then it has three types of energy. वो energy कौन कौन सी होती है? First one is kinetic energy. First energy कौन सी होती है? Kinetic energy. Second is potential energy. And third one is the pressure energy. You know about the kinetic energy, potential energy, हमारे लिए नया pressure energy है. तो we will discuss in detail about this. So first of all we are going to start with the kinetic energy, पहले energy and what will be the value of it. First one is kinetic energy of a liquid in steady flow. Kinetic energy. अब किसी भी बॉडी में how it have the kinetic energy, this is because of the virtue of its motion. So it is due to the, why it's happening, it is due to the virtue of its motion. बॉडी में काइनेटिक एनर्जी क्यों आती है? बिकॉज ऑफ वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. अब इसका वैल्यू कितना होता है? दिस इज गिवन बाय काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू, इसको हम लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर. दिस इज द प्रीवियस फार्मूला, ये आपने पढ़ा होगा, वेयर एम इज द मास ऑफ द लिक्विड and v is the velocity of the liquid. ये तो पता होगा. What is the m? m is the mass of the liquid flowing with a velocity v. ये तो हमारा इक्वेशन नंबर 1. This we need. अब हम बात करें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास. इस सब हमें जरूरत पड़ती है when we discuss the Bernoulli's principle. तो ये हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी फॉर m मास. तो हम बात करें अगर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दिस हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास. टोटल मास ये कितना हो जाएगा? हाफ वी स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब एक चीज और हम देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या इसी से एक चीज और देखते हैं, इफ दिस काइनेटिक एनर्जी per unit weight, if you want to find out kinetic energy per unit weight, मतलब weight means m into g. kinetic energy ये हमें जरूरत पड़ती है, इसलिए हमें जान लेना चाहिए. kinetic energy per unit weight ये हो जाएगा, वी विल डिवाइड हाफ एम वी स्क्वायर टोटल काइनेटिक एनर्जी विथ वेट ऑफ द लिक्विड. ये कितना हो जाएगा? m इंटू जी. एम विल बी कैंसिल आउट. ये कितना हो जाएगा? हाफ वी स्क्वायर अपॉन जी. दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड नोट इट. इसको क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज द
velocity head. V square upon 2g. This is also known as velocity head. जब हम बात करेंगे आगे वेलोसिटी हेड की, इसका आंसर वी आर टॉकिंग अबाउट v स्क्वायर अपॉन 2g के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये हो गया वेलोसिटी हेड. एक चीज और हम इसके साथ देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ये कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम. तो एम अपन वी क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम डेंसिटी, हाफ रो इंटू वी स्क्वायर. These are the four expressions for the kinetic energy of a fluid which flow in a steady flow. तो क्या होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास हाफ वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट हाफ वी स्क्वायर अपन जी, या इसी को बोलते हैं वेलोसिटी हेड. काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एम वी स्क्वायर अपन वी, या हो जाएगा हाफ रो वी स्क्वायर. तो दिस इज होल अबाउट द kinetic energy of an ideal fluid which flow through the tube in a steady flow. Next our energy is the potential energy. दूसरी हमारी किस तरह की एनर्जी होती है, potential energy. Potential energy, इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा. This is due to the position of the liquid ना, that's the position from the earth surface. जैसे जैसे ऊपर होता है हाइट बढ़ती जाती है तो इसकी क्या होती है, एनर्जी बढ़ती जाती है. तो एनर्जी ऑफ ए लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट इज ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन एबव अर्थ सरफेस. क्लियर. अब इसका वैल्यू कितना होता है, एज यूजुअल यू नो दैट कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, एम मास ऑफ द लिक्विड, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस, और एच इज द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस. क्लियर. अब सेम वे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिफरेंट फार्मूला. दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन 1. पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास कितना होगा, वी हैव टू डिवाइड विथ एम जी एच विथ एम. ये कितना आ जाएगा, जी एच. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास. पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट, इफ यू आर टॉकिंग पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट, सेम वे वी आर डूइंग एज वी हैव डन इन द काइनेटिक एनर्जी. ये कितना हो जाएगा, एम जी एच अपॉन एम इंटू जी वेट. ये कितना आ जाएगा, एच. और दिस इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल हेड. दिस इज नोन एज पोटेंशियल हेड. ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करते जाइएगा. हेड ये आपका नोट होगा, इंपॉर्टेंट. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. वेलोसिटी हेड जैसे आपने पढ़ा था v स्क्वायर अपॉन 2g, वैसे आपके पास पोटेंशियल हेड क्या है, h के बराबर, या इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास. सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में हम डिस्कस कर ले रहे हैं. पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वी हैव टू डिवाइड विद दिस एम जी एच डिवाइडेड विद द वॉल्यूम. एम अपन वी कितना हो जाएगा, डेंसिटी रो जी इंटू एच. दिस इज द इक्वेशन नंबर 4. So this is the 4 expression for the potential energy of an ideal fluid which flow in a steady flow. So these two we have done. Now we have next pressure energy. Pressure energy. You saw that pressure energy क्यों होती है? This is virtue of it's due to the virtue of its pressure मतलब लिक्विड प्रेशर की वजह से. प्रेशर इज नोन एज द प्रेशर एनर्जी. ए लिक्विड अंडर प्रेशर कैन डू वर्क एंड सो प्रोसेसेस एनर्जी. यही होता है ना कि अगर लिक्विड अगर अंदर है, इफ इट हैज ए प्रेशर, तो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन डू द वर्क. लिक्विड कैन डू द वर्क. तो इफ इट्स डूइंग द वर्क, दैट्स व्हाई दे हैव द प्रेशर एनर्जी. क्लियर. अब प्रेशर एनर्जी हम पता करते हैं. प्रेशर एनर्जी, इसके लिए एक्सप्रेशन,
pressure energy of volume V is equal to कितना हो जाएगा P into V, where P is the pressure and V is the volume of the liquid. प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की अगर हम बात करें, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा PV अपॉन V, और दिस विल बिकम P. क्लियर? प्रेशर एनर्जी किसके बराबर हो गया? ये आपका प्रेशर के बराबर हो गया. दिस इज द एक्सेस प्रेशर के बराबर. देन वी हैव प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास. प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास अगर हम फाइंड आउट करें तो दिस विल बी इक्वल टू PV टोटल एनर्जी अपॉन M. ये कितना हो जाएगा? P इंटू डेंसिटी P अपॉन रो, क्योंकि M अपॉन V इसको कर लेंगे, इसको आप लिख सकते हैं ना P अपॉन M अपॉन V. तो M अपॉन V क्या हो जाएगा? रो, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. अब हम बात करते हैं प्रेशर हेड की बात करते हैं, तो वो क्या होता है? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, ये किसके बराबर हो जाएगा? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास डिवाइडेड विद G ना. तो ये तो ऐसे कर सकते हैं PV अपॉन M इंटू G, और ये क्या हो जाएगा? P अपॉन M अपॉन V, तो ये हो जाएगा रो P अपॉन रो इंटू G. इसको क्या कहते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज द प्रेशर हेड. तो ये चीजें आपको, दिस इज द 1, दिस इज 2, this is 3, and this is 4. This you should note it. So this is whole about the energy of a fluid in steady flow. कौन कौन सी एनर्जी होती है? प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी टोटल कितनी होती है? हाफ mv² के बराबर. काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास कितना होता है? हाफ v². काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बात करें तो हाफ रो V². काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट कितना होता है? तो V² अपॉन 2G, और इसी को बोलते हैं आपका काइनेटिक या वेलोसिटी हेड. इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं. दिस इज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द लिक्विड, और ये टोटल कितना होता है? mgh के बराबर. पर यूनिट मास की बात करें तो gh के बराबर, और पर यूनिट वेट की बात करें तो आपका h के बराबर, और दिस इज ऑल्सो नोन एज द पोटेंशियल हेड. पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो रो GH के बराबर. प्रेशर एनर्जी फॉर ए वॉल्यूम V ऑफ ए लिक्विड PV के बराबर. पर यूनिट वॉल्यूम एक्सेस प्रेशर के बराबर. पर यूनिट मास बात करें तो आपका हो जाएगा P अपॉन रो. पर यूनिट वेट की बात करें तो P अपॉन रो G, और दिस इज ऑल्सो नोन एज द प्रेशर हेड. तो दिस इज होल अबाउट द एनर्जी रिलेटेड टू द फ्लूइड इन ए स्टेडी फ्लो. Our next topic, which is very important of this chapter, that is the Bernoulli's principle.